हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष नारंग और आप सबका स्वागत है द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर जॉली। ही इज हैविंग 20 years of experience in corporates and he is a leadership and emotional intelligence coach. आज के इस शो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिथ्स अबाउट द लीडरशिप पे काफी सारे मिथ्स होते हैं लोगों के माइंड में, काफी सारे भ्रांतियां और कुछ क्वेश्चंस होते हैं लीडरशिप को लेके। तो उन सभी हम मिथ्स को आज ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली एक अच्छा लीडर होने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आई वांट टू वेलकम जॉली सर ऑन द शो। Welcome on the show, Jolly sir. It's been a long time since we were in touch, and we are very grateful to you that you have taken time to help our audience learn more about leadership. Because leadership is a trait that everybody wants to learn. But the very first question when we were interacting came in my mind is why to be a leader? What is leader and why to be a leader? What are the benefits out of it? We are living in a life. Life is being pretty much smooth, but like people say that leadership brings a lot of values. So what are those, sir? Can you please put some light on it? Sir, having worked in the corporate for almost 20 years and that too in learning and development department, I think there are a lot of myths in the market. Popular literature में बहुत सारे myths हैं related to leadership. जी. And I will definitely like to break those right now and right today. Okay, great. सबसे पहली myth है कि leader is compulsory or necessary to become. If we define leadership as leadership of people or leadership of organizations or leadership of nations, तो हम ये मानकर चलते हैं, कहीं हमारी assumption है, even in your question I can see that assumption कि leader होना जरूरी है. Right. I disagree with that. Okay. Okay. Interestingly, अगर आप career शुरू करें, life शुरू करें, तो सबसे पहले तो अच्छा subordinate और चेला होना जरूरी है. Okay. Interesting. भगवान श्री राम थे, लेकिन हनुमान की भी उतनी पूजा होती है, एंड हनुमान ने कभी नहीं कहा कि वो लीडर है. Agree. He was one of the best subordinates in the world. Yes. मैंने जब करियर शुरू किया तो किसी ने मुझे लीडर किया, दूर दूर तक कोई पूछता भी नहीं था. Although I started with MBA and with top company, I was a subordinate and I was regarded कि if you are a good subordinate, आपकी नौकरी चलती रहेगी. That's true. From my experience also I can relate. And in a team of cricket team, 11 or 17 players, that is only one captain, MS Dhoni. That's it. Right. And when MS Dhoni is there, Virat Kohli does not dare act as a captain. वो अपनी IPL में captaincy झाड़े. But once he is in national team, I'm talking about 2-3 years ago, it's better to be a subordinate. नहीं तो एक म्यान में दो तलवारें हो जाएंगी. जी. Right. So ये समझना बहुत जरूरी है कि at any point of time, it is more important to become a good subordinate and a good team player, right, rather than trying to become a leader. मगर प्रॉब्लम क्या है दोस्त दुनिया में कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो अच्छे सबॉर्डिनेट और अच्छे टीम प्लेयर बनने की कोशिश नहीं करते. आधी लड़ाई तो लीडर की टेंशन यही रहती है कि आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट हैं. सबॉर्डिनेट सुबह आता है, उसका दिल करता है तो गर्लफ्रेंड के साथ दोपहर को 4 बजे फोन करने लग जाता है, rather than doing his job at work. And so many other things. So अगर लीडरशिप को होलिस्टिकली या और एक बिगर सर्कल में मैं देखूं, the first challenge before everybody and anybody is to become leader of self, ability to manage oneself, ability to manage one's tendencies and emotions. अगर हम ये भी करना शुरू कर दें तो एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाएंगे. Right. That is myth number 1. Right. Myth number 2, whenever I listen to those motivational speakers and all that on the internet, YouTube, most of the leadership coaches try to say हमें motivate करना है, this and that. How many times have you seen Dhoni motivating his team players? Very not a single time, right? Yes, yeah, very rare. No, you might not have seen a single incident whether he would have said very good, never. So let me give you the guru mantra of leader, and I'm talking about Dhoni especially because everybody is aware of Dhoni. Right. Otherwise I have 100 more examples with whom I have worked in my career, right, and from whom I learned
skills and trait of becoming a true leader. A true leader is able to analyze a situation correctly. Number two, he is able to take the right decisions. And then he makes a plan which is executable plan, flawless plan. Okay, great. Agree. And everybody will fall in this circle, whether it is Modi, whether it is Dhoni, whether it is Ambani, or whether it is any other leader, so-called leader of any other line. You don't need to motivate daily. People will, लोग आपके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं अगर वो विश्वास कर जाएं, अगर उनको विश्वास हो जाए कि ये भाई साहब जब निर्णय लेते हैं ना तो हमारा भी भला होता है, इनका भी भला होता है. Right. So that is leadership. Ability to take the right decisions. So आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ता, लोग खुद ब खुद आपके पास चिपकते हैं क्योंकि हर बंदा हारने से डरता है. कोई नहीं चाहता कि उसकी किश्ती डूबे. अगर आपको एक ऐसा कैप्टन मिल जाता है, वो कहेगा मेरे हिसाब से चलो समुद्र में यहां से निकलेंगे तो हम दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे, और लोग पहुंच जाते हैं, तो अगली बार खुद ब खुद लोग आपके आगे सबऑर्डिनेट बनने के लिए रेडी हो जाते हैं. Right. Right. So that's what I wanted to say. Great, great. So sir, एक second question जो मेरे mind में आ रहा है, leadership को काफी time position of authority से link किया जाता है कि अगर कोई person authority की position पे है, then only he can be a leader. Otherwise, he's not leader. He cannot lead the team or he cannot influence the decision, और वो rightly plan नहीं कर सकता. So what is your view on it? आपका क्या इसके ऊपर point of view है? आपने जिस तरह से प्रश्न पूछा है उसी के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ है. ये भी अपने में एक मिथ है, बट मुझे लगता है ये मिथ अब इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है. अगर आप लेटेस्ट लिटरेचर देखें पिछले 5 से 10 साल का इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप, दे से, एंड देयर आर बुक्स पब्लिश्ड ऑन दैट टॉपिक, लीडर विदाउट टाइटल, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, वो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, राइट. और सो लीडर का टाइटल के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली. अदरवाइज होता क्या है कि आमतौर से चूंकि एक आदमी एक पोजीशन पे आ गया जहां पर उसको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपने सबऑर्डिनेट्स की या टीम की या ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर एक लीडरशिप का एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वेयर इट इज कंपल्सरी फॉर हिम टू एक्ट एज ए गुड लीडर. बट अदरवाइज अगर आप आसपास के लोगों को देखें, एंड प्लीज फाइंड आउट, देयर आर सो मेनी पीपल हु एक्ट एज लीडर ऑलमोस्ट डेली अराउंड यू. आपकी मेड भी कई बार लीडर के रूप में एक्ट करती है, जब वो घर आके बताती है नहीं जी अभी यहाँ सफाई होगी यहाँ नहीं होगी, और वो आपको इन्फ्लुएंस करके चली जाती है, राइट दिवाली या जो करती है कर दे बस. So she influences you. Same is sometimes the sabji wala also influences you. He also shows his leadership कि सर ये सब्जी आपके काम की नहीं है. आप कहते क्यों भाई, ये 2 दिन पुरानी, सर मैं आपको गंदी सब्जी नहीं दूंगा. वाह, वो आज आपको पटा कर चला गया, कल आपको 40 रुपए वाली 60 रुपए बेच कर जाएगा और आप खरीदोगे. Agree. सो लीडरशिप को एक होलिस्टिक नजर से देखने की जरूरत है. मगर अगर हम अपनी टारगेट ऑडियंस को यंगस्टर माने, एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, द यंगस्टर्स एज ग्रुप ऑफ से 20, 21, 22 टू से 29, 30, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, लर्न हाउ टू मैनेज योरसेल्फ. दैट इज योर फर्स्ट विक्ट्री एज ए लीडर. बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ. व्हाट आर योर टेंडेंसीज, आपके थॉट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी नीड्स, इमोशनल नीड्स क्या हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में आइडेंटिफाई देम, एंड देयर इज अ फुल प्रोग्राम अराउंड दैट कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. सो मैं कंडक्ट करता हूं कई बार. सो बिकम अवेयर ऑफ सेल्फ. देन इज सेल्फ मैनेजमेंट. मैनेज योरसेल्फ. किसी सिचुएशन में धाकड़पना अच्छा होता है, किसी सिचुएशन में या मैक्सिमम सिचुएशन में झुकना फायदेमंद होता है. और बहुत सारे लोग जो सही टाइम पर नहीं झुकते हैं वो खत्म हो जाते हैं. और यंगस्टर में चूंकि वो जरा जोश ज्यादा होता है, और हिंदी फिल्मों का असर भी तो गलत सा है, तो वो लोग मरने पर जल्दी तुर जाते हैं रेदर देन झुक कर चलना. हमने तो भैया घर से निकले, बैग लेकर छोटे से शहर पठानकोट से दिल्ली आए, तो उसी समय समझ गए थे, अपने यहाँ सामने डांट खाते हुए देखते थे अपने बॉसों को, तो समझ गए थे कि झुक के रहेंगे तो जिंदगी में टिके रहेंगे, वरना यहाँ से भी बाहर जाएंगे. आज वर्ल्ड की सारी चीजें हैं, बट सो ये सबऑर्डिनेशन स्किल बहुत कम है आज की नई जनरेशन में. वैसे भी बच्चे 1-1, 2-2 होते हैं, माँ बाप को जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें, मेरा लाडो, मेरा लल्लू, मेरा पुच्चू, एंड देन दे थिंक आई एम द हीरो ऑफ द वर्ल्ड. बट राइट, एग्री. एंड थर्ड इज लीडरशिप में अगर सेल्फ मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो है सेल्फ मोटिवेशन. एक चीज जिसका बहुत ज्यादा खमियाजा हुआ है, आई नोटिस ड्यूरिंग द कोविड-19 इज
लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मैंने इसी दौरान अपना पूरा इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, पूरा एक कोर्स अराउंड डिसीजन मेकिंग का रिकॉर्ड किया है। एबीसी नहीं आती थी मुझे इसमें से। अभी आप देखें, एक वर्चुअल बैकग्राउंड मेरे पीछे लगी हुई है, कार्मिक बिजनेस, ये सब मैंने खुद क्रिएट किया है। तो ये सब पिछले 3 महीने में सीखा है। उससे पहले आईटी कंपनियों में या किसी भी कंपनी में काम करते थे, बोलते थे भैया मेरा कंप्यूटर ठीक नहीं है यार, आगे बटन दबाता है यार, एंड समबडी वुड डू दैट, एक्सेप्ट फॉर एक्सेल शीट एंड 2-3 चीजें जो होती हैं, आई डिडंट न्यू एनीथिंग एल्स। और अब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग भी पता लग गई है, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन भी आ गई हैं। सो अपनी तारीफ नहीं करूंगा, पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, और यंगस्टर्स जल्दी हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी डिफीट नहीं देखी होती है लाइफ में। सो अगर अपने आप को लीडर बनाना है तो सेल्फ मोटिवेशन करना सीखें। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए अगर आपको यूट्यूब पे जाना पड़ता है, किसी और का ज्ञान लेकर आप मोटिवेट होते हैं, तो आप जिंदगी में कभी लीडर नहीं बन सकते। ये एग्जामिनेशन था, कोविड-19 वाज अ गुड एग्जाम टू सी हाउ गुड and calm you are able to remain, how much helpful you are still to others, and still you are able to spread happiness around, or learn something new skill. That was the best time to learn it. Best time to learn. I agree on it. और अगर ये 3 चीजें आपके पास आ जाती हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, तो 4th इंपॉर्टेंट चीज है सोशल अवेयरनेस। आप अपने प्रिंसिपल्स एंड रूल्स के हिसाब से लोगों को मैनेज नहीं कर सकते। सोशल अवेयरनेस मींस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है। एक ग्रुप के अंदर खड़े हैं तो ग्रुप में डायनेमिक्स क्या चल रही है, उसको कैसे मैनेज करें। आपका कोई एजेंडा है तो, और लोग आपके साथ नहीं हैं, तो उनको अपने साथ इन्फ्लुएंस कैसे करें बिना उनको ऑफेंड किए। ये एक आर्ट है, 30 साल लगते हैं इसमें सीखने में जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप इन 5 चीजों में अच्छे हो जाते हैं, एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बेसिक्स है फर्स्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स बिफोर बीइंग अंडरस्टूड, जो अभी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। सो आपने जैसे पॉइंट रखा सर कि दीज थिंग्स कम विद एक्सपीरियंस, राइट। सो ऐसे बोलते हैं कि लीडरशिप एज के साथ आती है। लाइक लीडरशिप के लिए एक लाइक टाइम ऑफ एक्सपीरियंस हो। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं, काफी कन्वेंशनल एटमॉस्फेयर होता है कि अगर आप एक यंग मैनेजर जाते हो तो आपके आइडियाज को इन जनरल केस उतना वेटेज नहीं मिलता, आपको प्रमोशंस नहीं मिलते। ऐसा बोला जाता है कि वी हैव अ पॉलिसी कि इससे इतनी एज से ऊपर वाले को ही हम सीनियर मैनेजर बना सकते हैं, इतनी एज वाले पर्सन को ही हम इतना सैलरी पैकेज ऑफर कर सकते हैं, राइट। सो दे कंसिडर लाइक कि लीडरशिप का कहीं ना कहीं एज से, नंबर ऑफ इयर्स के एक्सपीरियंस से लिंक है। सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट इट कि क्या लीडरशिप एज और एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, या लाइक if somebody can learn it fast and develop it fast, so how they can do it? पहले सेकंड पार्ट ऑफ योर आंसर देते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट पे आते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। सेकंड पार्ट इज इजी। सी देखिए, लीडरशिप सीखी जा सकती है, सेल्फ मैनेजमेंट इजीली सीखी जा सकती है। ये जो अभी मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में बताया, ये मेरा 2 दिन का प्रोग्राम है, और कॉर्पोरेट में आई थिंक आई कंडक्टेड फॉर not less than 800 or 900 professionals. Very nice. And बाहर भी I have conducted for 2-3 companies and charged a bomb. तो ये जो आप यंग एज में अगर गलतियां करके, अगर आपने बाल सफेद करने के बाद अगर सीखा, तो क्या सीखा यार लाइफ में? जब तक लाइफ एंजॉय करने का टाइम आया तो आपके बाल सफेद हो गए। लीडरशिप तो सीखी जा सकती है, लेकिन क्लास में नहीं सीखी जा सकती। क्लास में सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। लीडरशिप हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, एंड यंग एज में भी सीखी जा सकती है। सो वो जो आपका मिथ, आप जो कह रहे हैं, वो मिथ है। आई हैव सीन यंग पीपल डूइंग ट्रेमेंडसली वेल विद स्मॉल टीम्स एंड डूइंग ट्रेमेंडसली वर्क एज लीडर्स। दे आर ऑब्जर्वेंट, वो ऑब्जर्व करते हैं दूसरा क्या चाहता है, अपने आप को मैनेज करते हैं, अपना एजेंडा भी उनका क्लियर होता है, टीम को भी स्टीयर कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो लीडरशिप इज ए प्रैक्टिस, इट्स ए स्किल हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। आप और कुछ नहीं तो घर के 4 लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करके देखना शुरू कीजिए। अपनी RW का ही वो ट्रेजरर बन जाइए और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और वहां अपनी लीडरशिप स्किल की प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी टीम के अंदर अगर कंपनी में काम करते हैं तो अपनी टीम के 3-4 जो लोग हैं उन्हीं को इन्फ्लुएंस कीजिए, देखिए क्या असर होता है। आप कहाँ गलती करते हैं उसको नोट कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, उसको किसी मेंटर के साथ चेक कीजिए, कोई कोच या मेंटर अपना बना लीजिए, एंड अपने आप को लगातार चेक करते रहिए और इंप्रूव करते रहिए। तो बहुत ही कम एज के अंदर भी आप एक अच्छी लीडर बन सकते हैं।
and there are technical models available to create leadership at a young age. Established models हैं, उसके लिए मुझे कोई बहुत, you can connect with me, people can connect with me, मैं बहुत कम समय में वादा कर सकता हूँ कि हाँ वो एक लीडरशिप की जो कोर है वहां तक पहुंचाया जा सकता है बंदे को, लेकिन प्रैक्टिस तो बंदे ने करनी है। आई एम ए कोच। रियली इंटरेस्टिंग। घोड़ा अगर भागेगा नहीं तो कुआं पानी तो नहीं पिला सकता। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। देखिए, चूंकि लीडरशिप एक बड़ी वेग सी चीज है और इंटरव्यू स्किल्स हमारी वैसे ही बहुत ही पैथेटिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन है इंडिया में, दुनिया में मैं कहता हूं तो लोग ना सेफ एंड साउंड डिसीजन लेना पसंद करते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो आशीष सामने बैठा हुआ है ये असल में लीडर है कि नहीं है। यंग दिख रहा है, बहुत ज्यादा एज नहीं है, 28, 29, 30। तो अब उनको डिसीजन लेना है कि जॉली को रखें या आशीष को। तो उनके पास कोई पैमाना नहीं है नापने के लिए कि आशीष इज अ बेटर लीडर देन जॉली। तो इसलिए वो ऐसी पॉलिसी बना देते हैं कि यार जो बंदे ने 20 साल लगाए होंगे वो कम से कम थोड़ा तो उसको आता ही होगा, इसने अगर पिछली कंपनी में मैनेज किया तो आता ही होगा। तो ये assumption based पॉलिसीज बनी हुई है पूरी दुनिया में। Agree. So, sir, what is your advice? My next question is, what is your advice कि क्या qualities inculcate करनी चाहिए, किन qualities को develop करना चाहिए, so that the youngster becomes leaders at early stage in their lives. So, मैंने शायद इसके बारे में थोड़ा सा आंसर देना शुरू कर दिया था। Yes, अगर जैसे हम कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें, they are at college stage, और जब वो कॉलेज से पास आउट होते हैं, अगेन अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो से अगर कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। सो हाउ वन कैन आउटशाइन, या फिर कोई ऐसे लोग जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, व्हेन दे आर कॉम्पिटिंग टू द सेम एज ग्रुप पीपल, क्या क्वालिटीज वो इनकलकेट करें ताकि वो बाकी लोगों से एक बेटर पोजीशन पे अपने आप को प्रूव कर पाए कि उनका सिलेक्शन हो जाए। सो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन इट सर? ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये शायद लकीली या अनलकीली मैंने बहुत साल पहले क्रैक कर लिया था अपने करियर की शुरुआत में ही। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, और ये एडवाइस मैंने बहुत लोगों को दी भी है शायद आज तक। अभी पीछे कोर्स भी रन कर रहा था मैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू स्किल का, तो उसमें भी तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब एमबीए कर रहा था तो मैं एक्चुअली डरा हुआ इंसान था, लेट मी टेल यू। लोग एमबीए करके खुश होते हैं, मैं डरा हुआ था। डरा इसलिए हुआ था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 94, कि हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो हो गई एमबीए में, एक तो टेररिज्म बहुत ज्यादा था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जहां मैं एमबीए कर रहा था, तो टेररिस्ट घूमते रहते थे। तो हमें डर लगता था कि ये ना होगा कोई पुलिस मार दे या टेररिस्ट उठा के ले जाए, तो डर डर के एमबीए की। इसी दौरान ये पता लगा कि कोई कंपनी आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए नहीं आने वाली, और डर लग गया यार। बेरोजगारी के डर से मैं एमबीए करने गया था, और अब अगर कंपनी भी ना आएगी तो मेरा क्या होगा कल ये राइट। तो वहां लेकिन एक अच्छी चीज हुई। अच्छी चीज क्या हुई कि वहां एक एग्जीबिशन लगी हुई थी, एंड इन दैट एग्जीबिशन आई गॉट ए बुक कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू हैंडराइटिंग। बुक का नाम मुझे भूल गया, टॉपिक ये था कि हैंडराइटिंग के द्वारा किसी की पर्सनैलिटी कैसे असेस करें। तो मैंने फटाफट किताब खरीद ली और किताब को पढ़ने लगा। अपनी क्लास के सारे बच्चों की असेसमेंट भी कर डाली फटाफट, पर्सनैलिटी असेसमेंट। सही थी गलत थी पता नहीं, 70% तो ठीक ही थी, लोग कहते हाँ वेरी गुड। राइट। तो पर्सनालिटी जब मेरी इंटरव्यू हुई, आपने एक एनालाइज कर, मैं एचआर में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखा जो आपने लर्न किया, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो मतलब आसपास के बच्चों के साथ ट्राई कर रहा था कि खुद को इंप्रूव करूं। जब मैंने अच्छा दूसरी एक और चीज की, जब मैं समर ट्रेनिंग किसी, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी रिश्तेदार की तरह रिक्वेस्ट की कि मुझे समर ट्रेनिंग करनी है, वो किसी कंपनी में लगे हुए थे, ही सेड ओके आ जाओ। उनको था कि 2 महीने टाइम पास करेगा, अपना सर्टिफिकेट लेगा, घर चला जाएगा। और कंपनी में भी सेटअप हो रही थी, इट वाज अ न्यू फैक्ट्री व्हिच वाज बीइंग सेटअप इन रोहतक, राजस्थान, हरियाणा। और वहां का जो सीईओ था बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान था, 6 फुट हाइट, गंजा, फिर हिंदुस्तानी फिल्म का विलेन लगता था, एकदम गोरा, और इंग्लिश भी बड़ी फराटेदार मारता था, स्पोर्ट्स शूज पहनता था, उसकी आवाज नहीं आती थी पीछे से जब वो आपके कमरे में आता था, एंड बच्चे डरते थे सारी कंपनी उनसे। मुझे लगा ये एक मौका है भाई। मैंने उनकी खूब चमचागिरी की, खूब चमचागिरी की। तो चमचागिरी का फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि बेटा 2 साल अपनी एमबीए खत्म करके यहीं आ जाना। नाउ सम ऑफ द पीपल विल से कि चमचागिरी नहीं करनी चाहिए, ये है वो है। ये सारे असूल जो है ना अपने बक्से में बंद करके ना लॉकर में रख देने चाहिए अगर नौकरी करनी है या करियर में सक्सेसफुल होना है। सिर्फ वही असूल रखने चाहिए जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करें। और ये भी बहुत बड़े मिथ है जो लोगों को उनके माँ बाप गलत चीजें डालते रहते हैं, जो जिसको सबसे ज्यादा तोड़ने में मुझे मेहनत करनी पड़ती है अगर देखा जाए, बाकी सब चीजें आसान होती हैं।
तो मेरे को लगा भी ये बॉस ये है, इसी के हाथ में पावर है, इसके आगे झुकूंगा तो कुछ बन जाएगा, और बन गया। दैट वाज फर्स्ट विक्ट्री। सेकंड विक्ट्री, लेकिन उस कंपनी में चूंकि सब लोग बहुत दुखी रहते थे, तो मुझे लगा यार दुखी क्यों रहते हैं, खुश होकर काम नहीं किया जा सकता क्या? तो थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आया ओडी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। उस सब्जेक्ट के अंदर वो सारे क्वेश्चनों के आंसर थे जो मैं अभी अभी 2 महीने की समर ट्रेनिंग में ऑब्जर्व करके आया था। सो आई फेल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। उन दिनों में इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ज्यादा नाम था कि जो अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अच्छे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि यूनियंस बहुत हुआ करती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री लिबरलाइजेशन ईरा। मनमोहन सिंह अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, और इंडिया में अभी भी सड़कें टूटी होती थी और बसें टेढ़ी चलती थी, और सिलेंडर के लिए आपको 1 दिन पहले बुक कराना पड़ता था, 3 दिन बाद लेना पड़ता था, और हफ्ते बाद आपको सिलेंडर आता था, और इस दौरान चूल्हे से घर में चलाते थे खाना। ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन 4 घरों में 1 टेलीफोन होता था, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो डरा हुआ इंसान था कि नौकरी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। लेकिन वो जो ओडी का सब्जेक्ट था वो मुझे इतना अच्छा लगा कि उसी पर मैंने फाइनल प्रोजेक्ट भी उसी में किया, एंड आई गॉट सिल्वर मेडल इन माय यूनिवर्सिटी। फिर एक और कंपनी आई सेंट्रल, उनकी जब मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ तो सिर्फ इसलिए शॉर्टलिस्ट हुआ क्योंकि मैंने ओडी पे प्रोजेक्ट किया हुआ था, उनको ओडी के बंदे चाहिए थे। जब एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसमें सिर्फ ओडी के क्वेश्चन, मैंने फटाफट चेक किया और पता लगा 150 लोगों में से 15 लोग शॉर्टलिस्टेड, आई वाज वन ऑफ देम। एंड शाम को जब इंटरव्यू हुई तो उसमें लिखा हुआ था हैंड राइटिंग एनालिसिस, वो जो मैंने टाइम पास के लिए सीखी थी। तो उन्होंने सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मैंने 2-3 आंसर दिए, उन्हीं की पर्सनैलिटी उसी समय एनालिसिस की, आई गॉट द जॉब। तो ये सारी स्टोरी में एक्चुअली क्रक्स क्या है, अगर निष्कर्ष निकालना हो, लर्निंग लेनी हो, ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। नंबर 2, ट्राई टू सी द ट्रेंड, दुनिया जा किस दिशा में रही है, जिस दिशा में जा रही है अगर आप उसको पहले से ही उसके लिए रेडी हो जाएं तो यू विल राइड द वेव। ग्रेट। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं मानता हूं, लेकिन जिस जमाने में मैंने करियर शुरू किया उस समय लिबरलाइजेशन हो रही थी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आ रही थी, एमबीएस की जरूरत थी, बस यहां से वहां से यहां छलांगे मारते गए और राइज करते गए। So understanding the future, कि क्या future के trends आ सकते हैं, that's a very big quality that you inculcated in yourself, and this is very interesting advice to our audience जो इस show को देख रहे हैं, कि आपको पहले देखना है कि trend किस तरफ जा रहा है। अभी अगर आप 2G के जमाने में रहोगे और 4G और 5G आने वाला है, तो you cannot progress in your life, so you have to be proactive in making the decisions for your life. Very interesting, sir. Really nice. So एंड सेकंड इज अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी इकट्ठी कीजिए, ऐसी कोई चीज इंटरव्यू में जाने से पहले आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कुछ खास एक्स्ट्रा किया हो जो कंपनी को इंटरेस्ट लगे देखकर। राइट, दे आर नॉट टू कीन टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड इंग्लिश, तो ठीक ठीक भी हो तो चली जाती है, बट अगर आपने समथिंग एक्स्ट्रा किया है जो उनके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, और आपका वो एक लर्निंग एटीट्यूड देखते हैं कि बंदा खुद ब खुद करा, मैनेजमेंट ने नहीं बोला था, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, इसने एक्स्ट्रा कुछ किया और खुद किया, उसके अंदर रीजनेबली भी ओके है, राइट, एग्जैक्टली। तो दे विल से प्लीज कम इन, बिकॉज़ प्रोएक्टिव पीपल आर नीडेड बाय द कंपनीज। राइट, लर्निंग एटीट्यूड वाले लोग चाहिए जो लर्न करने के लिए रेडी हैं, नई नई चीजें। आप मेरी इंटरव्यू की बात करें तो दिस इज व्हाट वाज नोटिस्ड बाय देम। लर्निंग एटीट्यूड, हम्बलनेस, प्रोएक्टिव, and looking at the trends and changing oneself according to the trends. So you इन 4 qualities ने मेरे को आज तक करियर में सक्सेस दी है। You have mentioned a point, humbleness. Actually, अभी मेरा recently इटली कंपनी में सिलेक्शन हुआ, I have joined on this Monday itself. So we were 2 candidates. One candidate was 20-year experienced. I was 8 years of experience. Right. He has work experience in foreign countries as well. Like he was residing in foreign countries for a long time, and I have only experience in India. And they had almost finalized that candidate. अभी उस पर्सन का जो मेरे कंपटीशन में था, उसका 20 years का एक्सपीरियंस, फॉरेन में रहने का एक्सपीरियंस, कंपनीज इटली बेस्ड, सो काफी सारे फैक्टर्स उनके फेवर में थे। एंड अगेन दे हैड इंटरव्यूड हिम फर्स्ट एंड मी लास्ट। सो बिफोर टेकिंग माय इंटरव्यू दे हैव फाइनलाइज्ड दैट वी आर क्लोजिंग दिस कैंडिडेट जस्ट फॉर सेक ऑफ टेकिंग इंटरव्यू, बिकॉज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हुआ था। एज ए प्रोसेस दे इंटरव्यूड मी like what HR shared with me, बस as to just for formality, just to complete the process, कि हमने किसी को कुछ promise किया है, अगर हमने किसी को कुछ promise किया तो we have to be on the words. So they interviewed me, but there were 6 members in the interview panel, 2 Indians, 4 Italians.
So all 4 people selected me just because they found me humble, they found me nice natured, and I had authored a book. Like I had an attitude to give back to the society. They found me like if I've written a book which was not asked by anybody, and the topic of book is learner to earner, which is meant to help people get their job to exceed in their careers. So they thought of this person is very down to earth. This is very humble, and he's thinking about giving back to the world. This was the only thing that I got the opportunity, and I'm very happy to have this opportunity. So, like, uh, the same thing that I'm so happened happy to has meet you. recently happened to me as well. Thank you so I much. think I've got a lifelong friend for myself also. Thank you so much, sir. It will be pleasure. It will be pleasure. Yes. Yes. So very like interesting things are Great. happening around. But given that, like if we are proactive, we are doing something, like it is said, if we help others, Upar wala helps us. So this happens. Yes. Excellent. So one the next. मैंने भी क्या किया था अभी कोविड के दौरान जी. the institutes were all closed and I was teaching in some institute. मुझे लगा ये बेचारों and some of them lost jobs also, especially in aviation and hospitality industry very fast. Oh, yes. तो मैं डर गया कि यार बच्चों का क्या होगा. So I started collecting their mobiles and started making a WhatsApp group. अब घर से तो निकल नहीं सकते थे, तो मैंने लगातार ऑनलाइन उनको व्हाट्सएप पे क्लासेस देने की कोशिश की, उनको मोटिवेट किया कि यार डोंट वरी, डोंट वरी, हो जाएगा, टेंशन मत लो. एंड भगवान ने ऐसा कुछ किया है कि आज आई एम गोइंग टू लॉन्च माय प्रोग्राम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. आई हैव लर्नड सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स जो मुझे शायद जिंदगी में पता भी ना चलती. एंड मुझे लगता है बिकॉज आई गिव समथिंग टू द सोसाइटी, समथिंग एल्स हैपेंड एंड स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन द. Yes, it's all karmas and like circle. It's like that. It's like that. I strongly what you give comes back to you. Yes. So next question I wanted to ask you, sir, like जो लोग cities में रहते हैं, metro cities में हैं, and अच्छे tier 1 colleges से पढ़े हुए, they have more opportunities. They have more opportunities to present themselves. They have access to so many resources. But the people who are living in villages, tier 2 colleges में हैं, जहाँ इतना infrastructure नहीं है. So what is your advice to them कि वो अपने करियर को एक्सेलरेट कैसे करें? What activities they should do? जैसे आपने बताया कि अगर हम घर में भी अपने फैमिली को लीड करके देखें, उनके इन आइडियाज को इन्फ्लुएंस करके देखें, ये सब्जी वाला भी इन्फ्लुएंस करता है. So what is your advice कि वो लोग एटलीस्ट 3-4 क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे वो अपनी पर्सनालिटी को और एनहांस करें? गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी बहुत ही छोटे से शहर से आता हूँ, बॉर्डर टाउन पठानकोट से. और जब मैं दिल्ली में आया था तो मैं डरा हुआ था. एक तो ये डर था कि नौकरी मिलेगी नहीं, दूसरा डर ये था कि इतने हाई फाई लोगों के सामने मैं टिक भी पाऊंगा कि नहीं. सो आई नो दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग ऑफ क्या कहते हैं उसे, कम तरीकी फीलिंग ऑफ नॉट अप टू द मार्क. दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन पीपल फ्रॉम स्मॉल सिटीज, स्पेशली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज. यहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा. आप टायर 2 में हैं या टायर 3 में या टायर 1 में, इसका आजकल इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू हैव मोबाइल्स एंड इंटरनेट एंड यू कैन एक्सेस द बेस्ट नॉलेज सिटिंग एट एनी पॉइंट ऑफ इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. मगर आप कंपनी कौन सी रखते हो उसका बहुत ज्यादा असर होता है. एक सर्वे भी हुआ था, आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, बट काफी पॉपुलर हो चुका है मिथ में हमारे मैनेजमेंट के सर्वे में. आपकी एवरेज सैलरी एंड इनकम, आपकी एवरेज सैलरी या इनकम इज ऑलवेज द एवरेज ऑफ आपका हाईएस्ट पेड फ्रेंड एंड लोएस्ट पेड फ्रेंड की. अगर सैलरी का एवरेज निकाला जाए तो आप ही की एवरेज निकलेगा. एंड दिस हैज एक्चुअली बीन प्रूवन बाय लॉयंस क्लब ने कंडक्ट किया था, एंड दे सेड यस दैट्स ट्रू. So your success to a large extent, especially youngsters, is determined by the company you keep. So आप टायर 2 या 3 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके दोस्त किस क्वालिटी के हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका फोकस कहाँ है. राइट. अगर आपके दोस्त लफंडर हैं तो आप भी लफंडर ही बनेंगे, चाहे टायर 1 में या 3 में. लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाऊंगा जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, जिनको कुछ दे सकता हूँ, आप भी हम्बल हैं, आप हम्बल दोस्तों को अपना फ्रेंड बनाते हैं, तो धीरे धीरे सब हम्बल बन जाते हैं. आपका दोस्त बहुत पढ़ाकू है, आपको भी प्रेशर महसूस होने लगता है कि मुझे भी पढ़ लेना चाहिए यार, 70 आए थे, 75 तक तो पहुंचूं. So peer pressure is very, very powerful and invisible force. Agree. So next thing I want and number 2, yeah, please. So जिस कंपनी को आप रखते हैं उसका एनालिसिस कीजिए और कंपनी चेंज कर दीजिए, क्योंकि करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंपनी.
आपके फ्रेंड्स तो फिर भी बाद में मिल जाएंगे कोई और भी, लेकिन अगर आप फ्रेंड ऐसे हैं जो आपको डुबो रहे हैं आपके साथ, तो आप भी डूब रहे हैं इनविजिबली। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक चीज और, एक मिथ है, मिथ ये है कि बहुत मेहनत करने से आप सक्सेसफुल होते हैं। ये बहुत फेमस मिथ है, पूरी दुनिया में मिथ फैली हुई है, और मैं भी इसी मिथ का शिकार हूं। बचपन में मुझे भी कहा जाता था बेटा पढ़ ले ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओनली व्हेन आई बिकेम सक्सेसफुल आई रियलाइज कि मैंने कोई ज्यादा मेहनत तो की नहीं थी। अगर आप ध्यान से नोट किए तो मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी, वो मुझे अच्छी लगी, किताब के बारे में लिखा वो साइकोमेट्रिक टूल वाली, और इंटरव्यूअर ने पूछा, इट वाज समथिंग डिफरेंट एंड टक आई वाज इन। बाकी लोगों ने पता नहीं कितनी आईआर में किताबों में लॉ पढ़ा होगा, मैंने ओडी की एक किताब पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, पढ़ता रहता था सुबह शाम उसको, मजे मजे में पढ़ गया, वो दिमाग के अंदर ऐसी घुसी कि जब टेस्ट था तो जो भी क्वेश्चन आ रहा था मुझे मालूम था इसका क्या आंसर है, टक। So was it hard work which helped me successful, or was it something else? I think it was something else. It was something what you liked, you did it, and did it with complete and devotion and full passion. So that helped you clicking the right things. यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ जो मैंने शायद अभी वर्ड्स में बोली थी, आपने बहुत अच्छी तरह से उसको पकड़ा था और रीइटरेट भी किया था। अगर आने वाले समय का ट्रेंड आप समझें कि किधर जा रहा है, और उस ट्रेंड में से कोई एक ऐसी चीज जिसमें आप या तो ठीक है या थोड़े अच्छे हो सकते हैं, उसको पकड़ लें, और सिर्फ उसको पकड़ लें, सिर्फ एक चीज, और उसके पीछे पड़ जाएं। जिसको कहते हैं ना पीछे पड़ना, तो सुबह शाम उसी के साथ सपने ले रहे हैं, उसी में अच्छे बन रहे हैं। 3 महीने 6 महीने 1 साल डजंट मैटर इन लाइफ। 40 साल के करियर में 1 साल को ज्यादा टाइम नहीं रहता है, लेकिन आप उस एक चीज में अच्छे हो जाते हैं तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको अच्छी जॉब ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी को उसी स्किल की जरूरत है जो उसमें आप अच्छे हो चुके हैं। फिर आपको तो एक ही जॉब चाहिए। Right. True. And so thank you so much sir, for right advice. You were giving very insights. So one more question I want to ask you from your side is, काफी सारे resources आपने जैसे अपने right time पे choose किए. So what is your advice? अभी YouTube पे अगर हम जाएं, if we want to learn something, अगर हम एक सर्च करते हैं तो हजारों रिजल्ट्स आते हैं, लाइक अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो 1000 रिजल्ट्स आते हैं, एंड व्हेन वी ब्राउज थ्रू लिंक्डइन every coach has a different program, like so definitely you are running your program, we will need your help on that as well, but what are your resources list that you would like to recommend the youngsters, जो कुछ books या कुछ YouTube channels या कुछ Google पे websites किनको यंगस्टर्स फॉलो करें ताकि उनको एक हेल्प मिले अपने करियर को एस करने के लिए, अपने करियर में फास्ट फॉरवर्ड एक्सेलरेट करने के लिए? इस बारे में टू बी वेरी फ्रैंक शायद मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर ना दे पाऊं, क्योंकि जिस तरह से आप कहते हैं वैसे मेरे को भी कंफ्यूजन होती है। व्हेनेवर आई गो ऑनलाइन देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज एंड सो मेनी I mean anything you type you get hundreds and hundreds of results and it's very difficult to find out what is the best and what is the right thing. Right. So मैं इसमें शायद सही आंसर ना दे पाऊं, बट क्वेश्चन थोड़ा सा शायद मैं आंसर तब दे पाऊं इफ द क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक, कि अगर हम ये डिसाइड कर पाएंगे हम किस टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हैं और वो किस करियर की बात कर रहे हैं। एमबी की बात हो रही है, मार्केटिंग की बात हो रही है, या स्किलिंग की बात हो रही है। Generally if we consider MBA freshers who are from marketing, finance or HR background, if we consider these three as our target audience for this particular question, so what is your advice, like what should be the right resources or book list they should follow? सी फिर से मैं वही कहूंगा, नॉलेज यहाँ नहीं बोला, अभी बोल देता हूँ, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, टन्स ऑफ नॉलेज इज यूजलेस एंड एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज प्राइसलेस। Interestingly, knowledge in the 21st century and especially 210 onwards has become the Sharia of the 19th century, unbranded, undifferentiable. आज से सिर्फ 10-15 साल पहले you could earn money just by having some knowledge. ये भी एक myth है जिसमें लोग अभी भी चली जा रहे हैं इस किश्ती में। I have seen so many people, they are collectors of knowledge. जहां देखो कोई ना कोई कोर्स करी जा रहे हैं, अपना डब्बा भरा हुआ है उनका नॉलेज का, बट नॉलेज से एक पैसा नहीं कमा पा रहे, वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो पा रहे। इसका रीजन ये है कि नॉलेज has become, let me repeat, has become Sharia of the 19th century, 21st century. At the press of the button, knowledge is available. So जो knowledge आपके पास है वही पड़ोसी के पास है, तो how will you differentiate yourself?
ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रैक्टिस के लिए कुछ करते हैं, चाहे फ्री में करें, तो आपको कोई ना कोई फायदा होगा। कोविड-19 में वैसे भी जॉब्स इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो मान लीजिए आपने एमबीए मार्केटिंग की है, तो बेशरम हो जाइए, नीचे वाले पड़ोसी के करियाने की दुकान पे चले जाइए, बोलो देख ऐसा है दोस्त, ना तेरा कुछ बिगड़ने वाला, ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला है, और ज्यादा टाई वाई पहन के जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि करियाने की दुकान में टाई पहनने वाला बंदा ही अजीब लगेगा। सो बी लाइक नॉर्मल टी शर्ट जीन्स में, और बोल मैं तेरा सामान देखता हूँ कैसे बिकता है और तेरी मदद करूंगा इस सामान को और बेचने में, बता कौन कौन सी चीज तेरी नहीं बिकती। दिस इज कॉल्ड ए चैलेंज। ठीक, वो पहले तो हो सकता है आपको ना कह दे, बट आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान का होगा यार बिकवा दे, बड़ी अच्छी बात है यार, तू तो एमबीए किया हुआ, बिकवा दे, और क्या बिगड़ने का क्या है, मेरा कुछ बच जाएगा तो मैं भी 4 पैसे तेरे को भी दे दूंगा अगर कुछ। एंड व्हाट यू डू द सर्वे ऑफ द होल स्टोर, जितनी भी चीजें बिल्कुल नहीं बिकती हैं उनकी आप लिस्ट बनाते हैं, उनकी कॉस्टिंग निकालते हैं, लैपटॉप साथ में ले जाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन सी स्लो मूविंग आइटम है, कौन सी फास्ट मूविंग आइटम है, किसमें मार्जिन कम है लेकिन फास्ट मूविंग है, किसमें मार्जिन ज्यादा लेकिन स्लो मूविंग है, कितनी रखनी चाहिए कितनी नहीं रखनी चाहिए, उसका एक एनालिसिस करें, और अपने एमबीए में सब एनालिसिस सीखे होते हैं। और आप 3 दिन या हफ्ते का सर्वे करने के बाद उसको सलाह देते हो ये जो 4 रेट में रखी है ना आपने, ये तो बेटा जितने रेट पे बेचना है ना वापस बेच, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा शेल्फ खराब हो रही है, इसकी जगह फास्ट मूविंग और कम मार्जिन वाली आइटम भी रख लोगे तो कुछ तो बिकेगा। या उसको प्लेसमेंट नहीं आती, आप उसको प्लेसमेंट ही सिखा देते हो, यार जो चीज बिक रही है उसको सामने क्यों रखते हो, मैगी नूडल नीचे भी रखोगे तो बिक जाएगा सामने वो चीज रखो जो कम बिकती है, ताकि देखकर लोगों की अटेंशन जाए। सो यूज स्पेस एज ए मनी, which most of the big retail shops does। मान लीजिए आपने महीना या 3 महीने में 2-3 स्टोर के ऐसे काम कर दिए, उसके बाद अपना बायोडाटा के अंदर लिखिए, जियो के पास जाइए, बोले आई वांट टू बी हायर्ड एज मैनेजर, आई हैव डन दिस वर्क एंड these are practical works I have done, this is my analysis and this is my learning, you are in man। सिमिलरली आप एचआर की बात करते हैं वैसे भी उनको बेचारों का बहुत बुरा हाल है। तो आपने एमबीए एचआर की है तो क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना शुरू कीजिए, जितने भी बेरोजगार लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपने +2 पास किया या सिंपल ग्रेजुएट है, अपने सीवी भेजिए, बैठ के उनके सीवी में ही हेल्प कर दीजिए कि सीवी अच्छा कैसे बनाना है, उनके साथ मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए, अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद अगर उनमें से 2 की भी नौकरी मिल गई ना, आपका झंडा पक्का है। Then again you can write in your CV, during this COVID-19 I helped 100 students to prepare their CVs, help them to prepare for interviews, उनमें से 4 लोगों को नौकरी मिल गई, you are in for the next job। And कितना मुश्किल है यार, हम ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचते नहीं। फाइनेंस की बात करता हूँ, सबसे बढ़िया काम फाइनेंस का, तो मैं कहता हूँ घर बैठ के पैसे कमा सकते हो चौड़े। फिर से वही रिटेल शॉप की 4-5 दुकानों पे जाए, खासकर कपड़े बेचने वाली दुकानों पे जिनका बुरा धंधा बुरा था, अब जाके दोबारा ऑन होना शुरू हुआ है दिवाली के आसपास। उन्होंने बोला भाई साहब मैंने आपसे कुछ लेना नहीं, आपने मुझे कुछ देना नहीं आपके बस आपको मेरे से रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूंगा कि ये जो आप फटाफट कपड़े बेची जा रहे हो हिसाब किताब ऐसे पर्चियों पे रखते हो, तो मैं पूरा डेटा एनालिसिस करता हूं कि आपका पिछले 1 महीने में कितनी सेल हुई है, हाई मार्जिन कपड़े कितने बिके हैं, लो मार्जिन कपड़े कितने बिके हैं, हाई मार्जिन पे आपने डिस्काउंट कितना दिया, हेंस आपको कितना मार्जिन मिला, लोड। तो आपका जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ द स्पेस एंड वो जो आपने लेबर रखी हुई है वो कितनी निकल रही है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेबर। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेबर उसकी 10x नहीं है, यानी 10,000 रुपए किसी बंदे को रखकर उससे लाख रुपया महीना नहीं कमा रहे हो, तो आपको लेबर रखनी नहीं चाहिए, बंदा निकालो और कम कॉस्ट में अपना रिड्यूस करो। वो पहली बार हैरान हो जाएगा कि ऐसी भी कोई कॉस्टिंग होती है लाइफ में। Do it and then go to a company and say I am a cost accountant, मुझे कॉस्टिंग आती है जी कैसे करनी होती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आता है मुझे कैलकुलेट करना, प्रैक्टिकल किया हुआ। अरे भैया मारुति भी हायर कर लेगी यार। गिवन दैट कि आप जैसे आपने पहले बोला प्रोएक्टिव हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करो इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग। Implementation is crucial and more important than just having bookish knowledge and having understanding of concepts. Very nice. So sir, you are sharing very beautiful insights and very practical knowledge. So abhi jo hamari audience dekh rahi hai and they want to learn more from you, so how they can reach out, aapke kya kya training programs, jaise aapne bataya ki emotional intelligence ka aap karte hain program, and aapne aviation sector mein like kuch training programs start kiye, so what all programs you do, leadership mein aap kar rahe hain, so what all programs you do and how one can reach out to you sir? एक प्रोग्राम तो मैं आज ही सोच रहा था, अभी मैंने ऐड दिया उसकी, लेट मी सी,
दैट इज अराउंड दिस थिंग ओनली। मुझे लगता है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज के बहुत सारे बच्चों की पर्सनैलिटी, जो आपने रेज भी किया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स, एंड हमारे अधिकतर जॉब जो है ना कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड निकलते हैं, CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, एंड इंग्लिश। तो मैं इन चारों को मिलाकर एक प्रोग्राम अभी लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत ही रीजनेबल रेट पर। मुझे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बट मैं चाहता हूँ कि भला हो जाए लोगों का। अब दोबारा मार्केट थोड़ी सी ऑन होनी शुरू हुई है, अगर लोग इसकी तैयारी करेंगे तो अगले 3 महीने में 6 महीने में तैयार हो जाएंगे। एक तो ये। सेकंड, अगर आप, मैंने शुरू में जब बोला था कि जो लीडर किस्म के लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो अपनी डिसीजन मेकिंग के स्किल पे काम करें, इवन पीपल लाइक यू, इफ यू इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग, you will learn, you will earn, you will rise very fast in life. आपको पता है बहुत सारे लोग अपने मिडिल मैनेजमेंट से ऊपर लाइफ में नहीं राइज कर पाते, एंड ना राइज कर पाने के पीछे वो सोचते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कंपनी मुझे प्रमोट क्यों नहीं करती है। मुझे भी लगता था कि क्यों नहीं होती कुछ लोगों की प्रमोशन, बिकॉज आई वाज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड till I reached a consultant level in 4,500 crore company and started sitting in those side of the table and learned कि जिन लोगों की डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी अच्छी नहीं है, those who are not able to take critical decisions on their own in vague environment, they are not promoted to the corner room. Interesting. आप जिंदगी में अगर 4 गलत डिसीजन ले लेना तो अच्छी खासी मेहनत और टैलेंट के बावजूद आप गड्ढे में पाए जाएंगे। राइट। सो एक प्रोग्राम जो पिछले 4 महीने से मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, दैट इज डिसीजन मेकिंग, एंड इट्स मोर देन 150 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, strategic decision, self decision making related to organizations. There are tools related to decision making जो लोगों को नहीं पता होता है। किस लड़की से शादी करनी है, that can also be used using a tool. Okay. Interesting. वो एक लॉन्च करने जा रहा हूँ। एंड थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जो हर किसी के लिए कंपलसरी समझ लीजिए। ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है, अगर 2-2 घंटे का किया जाए तो मैक्सिमम हफ्ते का प्रोग्राम है। सो ये 3 प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रहा हूँ। सो पीपल कैन रीच आउट टू मी। क्या मैं अपना मोबाइल नंबर बता सकता हूँ यहाँ पर? यस। एंड हम आप वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस वीडियो का, उसमें भी हम मोबाइल नंबर शेयर करेंगे आपका। आप एक बार बता भी दीजिए। माय मोबाइल इज 9910041467। आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही सबसे पहले कनेक्ट करें। नंबर 2, ईमेल आईडी jollylly.coach coach.karmic@gmail.com. Right. So the audience, you can get this email address and phone number in the description box of this video. So you can directly get in touch with sir. So one more question I wanted to ask you. So these courses are one-to-one online courses, or you are on some platform as well, like Udemy, or like you have listed your course there as well? मेरा जो ये डिसीजन मेकिंग का कोर्स है, दैट विल बी ऑन अ प्लेटफॉर्म, बट माय ओन प्लेटफॉर्म। आई विल बी द ओनर ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसलिए तो इतनी मेहनत की है। आई डोंट वांट टू शेयर इट विद एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म। राइट। बट जो दूसरे 2 प्रोग्राम है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटरव्यू स्किल्स का, दैट विल बी लाइव थ्रू वर्चुअल। और जो दिल्ली NCR में, उनके लिए शायद मैं अभी थोड़ा सा मैं भी डरता हूँ, आई डोंट वांट टू यूज कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, बट बीच बीच में उनका कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी होगा। So it will be a combination of contact program and online. Right. So we request the audience who are willing to take the programs, and I specifically recommend, आपने पूरा इंटरव्यू जो अभी देखा है तो आपको काफी एक insights मिली हैं, and you have gotten preview कि क्या आपको मिल सकता है सर के साथ एसोसिएट होने में। तो we highly recommend you to get in touch with Jolly sir, और आगे की डिटेल्स के लिए फर्स्टली यू सेंड व्हाट्सएप, और देन सर के साथ अपॉइंटमेंट लेके आप इस प्रोग्राम में आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। राइट। सो आई वांट टू थैंक यू सो मच जॉली सर फॉर बीइंग ऑन द शो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, एंड इट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड I look forward for more collaboration in future as well, like in interview sessions and programs, because मेरा भी जो है interview skills पे काफी command है, and I've written book on how to get a job, and like we can collaborate as well, and the purpose is to help our audience to grow in their careers fast forward way. Yes. So I thank you again, sir. Thank you again, and I thank you all the audience who are watching this show and have watched the complete video. We request you all from my side and Jolly sir to share to maximum of your friends and family members, and specifically to those who want to do something good and great in their careers.
So thank you so much, everybody. Thank you so much, Jolly sir, for being on the show. Thank you. Thank you, Ashish. Thank you for giving me the opportunity to come on the stage. It will be, I think, again, वो कहते हैं ना, अच्छा करो तो घूम के आता है. You are the one who connected with me. You are the one who is interviewing me. You are the one who is giving me the platform. I'm really honored and thankful to you. And I'm sure we can collaborate on a lot of things. Yes. So that's all my pleasure. Thank you. Thank you so much. Jai Hind, everybody. Jai Hind. Thank you.